Okay, so yesterday we learned about what this IO stream is containing. Okay, it is containing definitions of C out, C in, everything. Okay, it is internally having I stream and O stream. Okay, the main header file that is included in this. Okay, then we learned about what are namespaces. Namespaces was similar to what? Dictionaries. Correct, everyone? Dictionary. Like there could be two dictionaries, same name. You can see same name, but definition of them are different. Like here, A is an integer, A is a float here. Getting, everyone? Here A is equal to 10, here A is equal to 3.64. What is the definition I want? I can simply use directly using these two colons. Correct, everyone? All of you remember all of this? रिवीजन करके आए हो या नहीं? Yes. So yes, scope resolution operator. Okay, scope resolution operator, whatever is written in front of it, it tells whatever value of A you want to take na, you want to take it in this part, in this scope, and its scope is like Oxford is written na, so Oxford ka scope is between these two brackets, one and this. So this is A. Okay, and it is not mandatory only one item could be there. You can write here like this also. Everyone see, float b equal to 9.45. now agar if I will write like this, everyone see, std use karo C out definition that is written in std and print what? Oxford. Everyone see, Oxford ka b use karo. How can I write? Oxford colon b. If I will write like this, everyone see, I will give a space. Okay, I am giving a space here. Chalo. After this, I print it. Everyone see what is going to be printed. See, here it is printed is for this Oxford A, 10 is printed. You can see 10 is printed here. Correct, everyone? 10. Then next line, when you will come here, see out Oxford say lao B ka definition. Oxford B is equal to 9.45. That's why 9.45 is printed. Correct, everyone? Chalo, theek hai. We learned about namespaces. Then we learned about what is this main. I told you like this is the entry point. All of the running start from this main function. Operating system calls main function for the first time. So सबसे पहले we will come here. We will come here. Okay. First line that we see is C out. Computer please output. Okay. Computer please output. And कहाँ से output का definition? Which dictionary से लेना है? Standard वाले dictionary से. Okay. Hello हर्षा. Okay. Then print what? देखो C out के अंदर print what? A print करो. कहां से A print करो? Everyone see. A print करना है Oxford वाला. Oxford के अंदर A is equal to 10. That's why 10 is printed. Okay. Then give a space. देखो space यहाँ पे print हुआ, ये space है. Then next line पे आओ. Standard C out. Computer please output. कौन सा output करना है? Standard वाला output करना है. Okay. Print क्या करना है? B print करो. From where? From Oxford. Oxford का B is 9.45. Okay, so we learnt about all of this. Chalo, that's fine. And for those who are not able to understand it, they can watch the previous recording, okay, of the first class. Now everyone see, let's move forward. I'm going to like our program that we are going to discuss is like we need to add two numbers. Okay, add two numbers. A lot of things you are going to learn using from this simple program. I know many of you might be knowing this, but you are going to learn a lot from this. See, everyone, if I am giving you two numbers, you have to add them and return me the result. A normal human brain, how does it work? Dekho, if this is your brain, correct, something like this. This is your brain. I told you, please do 3 plus 5. Correct. So your human brain, how does it work? I told you, calculate 3 plus 5. You need to tell me the result. You will do what? 3. Okay. You hear the first word 3. In the brain, somewhere in the brain has also memory. Na? Somewhere in the brain, you will store 3. And you will recognize this number as, this is the number 1.
Yes, something like this you used to do. Okay, then 3 5 somewhere in the brain, in the memory you will store 5 and you will say this is my second number, number 2. Okay, then you will see, okay, plus operation. From the knowledge of yours कि plus operation is there, you will see, okay, मेरे brain में what is the information about plus. So in your brain now plus की information will be like, अगर two numbers के बीच में plus is written, तो sum operation करना है and इसका result आता है 8. Okay, so you will do what? 3 plus 5, somehow you will calculate it and in the memory you will store 8. Correct? Then you what to do? Then you do is speak कर देते हो 8. 8 is the answer. Something like this happens. Yes or no, everyone? So the steps would be like कि तुम्हें 2 numbers are there, given है तुम्हें 2 numbers, इसका आउटपुट बताना है. फर्स्ट नंबर को स्टोर करते हो, स्टोर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट स्टेप होता है. देन स्टोर सेकेंड नंबर. Then from the knowledge, देखो from your knowledge of plus operation, from the knowledge of plus operation, knowledge of plus operation, ये ह्यूमन कॉग्निशन सिस्टम है. सिंपल कैसे काम करता है, सिमिलरली ना कंप्यूटर भी वर्क करता है. फ्रॉम द नॉलेज ऑफ प्लस ऑपरेशन you calculate the result, you calculate the result, then what? Store it, store the result. See, store the result in somewhere and इसको तुम बोलोगे result नाम दे देते हो, res. Store the result, okay, in the brain and then output it. Output it. Yes or no? These are the steps. देखो एवरीवन, अब हमारे ह्यूमन ब्रेन को तो नॉलेज है कि ऑब्वियसली प्लस ऑपरेशन इज देयर, मोस्टली हम नंबर्स के साथ करते हैं. सो हमारा ब्रेन तो ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है एनी इंफॉर्मेशन. बट आवर कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा ना, द डेटा इज ऑफ टाइप इंटीजर. यस और नो? क्योंकि इट इज नॉट श्योर ना कि डेटा कुड बी लाइक 3.45 प्लस 5 करो. यस और नो? सो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी वी नीड, इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी वी नीड. सो ना इन अ कंप्यूटर्स, लाइक नॉर्मल ब्रेन में तो डायरेक्टली वी कैन स्टोर, बट इन अ कंप्यूटर वी नीड समथिंग. ओके, व्हाट वी नीड इज वी नीड डेटा टाइप्स. ओके, डेटा टाइप्स, what they are used for? They to store different datas. Different datas. Okay, we need data types. Like agar we want to store integers, integers like this, or -1, -2, -1000, 0, 1, 2, 3. These are all primitive data type. Yes. Okay, so these are all integers. So इसके लिए we use a keyword known as int. Okay, अभी keywords and identifiers भी बताऊंगा. Okay, see, इसको हम नेम दे देते हैं int in C++. अगर मुझे डेटा स्टोर कराना है, that is, देखो, integer takes 4 byte in the memory. Integer take 4 byte in the memory. 4 bytes. 4 bytes से क्या होता है? Everyone know that 1 byte is equality 8 bits. Yes or no? How many of you know that? Yes, everyone know? Good. So 1 byte equal to 8 bits. So everyone, just tell me, अगर integer take 4 bytes in the memory, like this is your RAM, main memory, तुमने कहीं भी एक integer के लिए space allocate किया. Just use allocated space for a integer. Like this is the 4 bytes. Each block is of 4 bytes. So just tell me how many bits are allocated? 4 bytes. Correct? 32 bits. 32 bits. Now everyone, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से. सिंपल, देखना कितना इजी है. ये कुछ मैं बताता हूं, 1 2 3 4 कुछ ऐसे ही होंगे 4 बाइट्स. मैं बोल रहा हूं हर एक बाइट में
there will be 8 bits. 1 2 3 4 5 6 7, something like this would be the structure of each byte. Yes or no? Obviously something like that. And everyone just tell me, each byte mein what we can store, what are the possibilities that we can store? Can anyone tell me each byte के अंदर क्या data store कर सकते हैं? Either 0 या 1. Yes or no? Okay, just tell me everyone कि इसमें 32 बाइट्स हैं. अगर मैंने बोल दिया ये स्टार्टिंग वाली एक बाइट है, ये रिजर्व्ड है साइन बिट के लिए. दिस स्टार्टिंग वाली बिट इज रिजर्व्ड फॉर साइन बिट. साइन बिट. सो इसे हटा के कितने बिट्स रिमेनिंग होते हैं? ऑब्वियसली 31 बिट्स विल बी रिमेनिंग. 31 बिट्स. ओके, अब जस्ट टेल मी एवरीवन, हर एक बॉक्स में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. ओके, 2 possibilities are there, either 0 will be there or 1 will be there. Everyone, 31 spaces are there. Just tell me what is the maximum number that can be stored? क्या किसी के पास थोड़ा दिमाग लगा पा रहा है? I am saying everyone know ना? Yes, correct. 2 to the power 31. इन सारे बिट्स में ना 1 1 ऐसे स्टोर कर दो. Yes or no? सब में 1 स्टोर कर दो. And see, yes, very good. So 2 to the power 31 is the maximum number that we can store. And now everyone ऐसे ही बताओ, what is the minimum number that can be stored? अब देखो, other than sign bit, अगर sign bit नहीं होती, अभी के लिए सोचो sign bit नहीं है, so can I say all of the bits will be containing 0? So 0 will be the minimum number. Yes or no? So 0 will be the minimum number. But there is a concept of sign bit now. So negatives में भी number we can store. So negative में ना also we can store. Okay. तो देखो negative में असली में number that can be stored is 2 to the power 31 minus 1. I think something like this, or plus 1, sorry. This is the number in the negative that can be stored. First of all, everyone tell me, negative वाला भी concept बाद में बताऊंगा. Maximum वाला समझ आया? What is the maximum number that we can store? Okay. अब now everyone see, maximum 2 to the power 31, it is actually equal to 10 to the power 9 approximately. Yes or no? That means only at max 10 digit number can be stored. 10 digit number. Yes or no? इतना ही नंबर स्टोर कर सकते हैं. But tell me यार, क्या इतने ही बड़े नंबर होते हैं? Number can be really large also ना? Like 10 to the power 9 से भी बड़े नंबर होंगे obviously. So for that ना हमने बोला कि 4 bytes कभी कभी it will be not be enough. So they give us a facility of long variables. Okay. Similarly, all features are of integers. But हमने बोला there is something called long. अब long number क्या है? Long के same thing है. ये भी ऐसे ही number store करेगा. Same integers ही. Okay. But इसमें क्या है difference? इसे भी ऐसे लिखते हैं long. ये भी long, इसका ऐसे कीवर्ड होता है long. But इसमें difference है, इसमें 4 बाइट स्टोर होते थे ना, इसमें 8 बाइट स्टोर होंगे. अब everyone just tell me, इसमें 8 बाइट स्टोर हो रहे हैं, इसके नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए? 64. जैसा नो, अब 64 हो गए. 1 बाइट रिजर्व फॉर व्हाट? साइन बिट. सो रिमेनिंग बिट कितने हुए? 63. Can I say now 2 to the power 63 size of number we can store, and that is approximately equal to, can I say, 10 to the power 18. So this much large number we can also store. So कुछ people को लग रहा होगा, some people might be thinking like they are a very little difference. How many of you think there is a very little difference in both of them? There is a very large difference between both of them. This number is na 10 to the power 9 times, 10 to the power 9 times smaller than this number. And 10 to the power 9 times, समझ रहे हो? You can see इतने टाइम्स, सोच रहे हो इतना बड़े नंबर टाइम्स ये छोटा है इस नंबर से. ओके.
इतना नंबर जब मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर में तो इतना बड़ा नंबर बनेगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस नंबर इज रियली लार्ज. ओके, सो कुछ बाइट्स इंक्रीज करने में ही we increased the size of the number that we can store by a lot. Okay, so this is the data type called long. Similarly, it also store integers, but it has a larger range. Okay, now there is a thing called float. Now everyone see, our normal numbers are not just integer type. We have also seen numbers like 1 to 1.32, 9.64. Everyone getting it? 3.0, 4.51. Yes or no? These are also type of numbers. These are decimal numbers. So in decimal numbers ko to store na, we need a data type called float. अब everyone understand, float also takes how many bytes? Float also take 4 bytes. Got it everyone? 4 bytes equal to 32 bits. ये भी 32 bits में स्टोर करता है. इसकी भी रेंज छोटी है एवरीवन. अब ये इसकी भी रेंज छोटी है इंट की तरह, इसका भी एक बड़ा भाई बनाया. ओके, देयर इज अ बिग ब्रदर फॉर दिस आल्सो. अब क्या, जैसे इंटीजर्स को, बड़े इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए लॉन्ग आया, सेम फ्लोट के लिए अ कीवर्ड केम दैट इज डबल. ओके, ये भी सेम ही टाइप नंबर स्टोर करता है. ओके, 9.63 समथिंग लाइक दिस. इफ यू विल मेंटेन द नोट्स दैट विल बी बेटर. ओके, इसके लिए कीवर्ड इज डबल. Okay, it takes how many bytes? 8 bytes. Okay, give me 1 second. ये हटाऊं कैसे? Okay, 8 bytes. That is 64 bits. How many of you got this thing? Understood? अब now everyone, just tell me, क्या यही different data types हो सकते हैं? क्या सिर्फ numbers से data होते हैं? No, सिर्फ numbers थोड़ी data होते हैं. There are different type of data also. Like, इसके अलावा कोई data type बताओ? Yes, very good. Character data type. Everyone see. इसके अलावा होता है character data type. 1, 2, 3, 4. Good. आदित्य good. तो ओहो. So there is a data type called character. अब देखो character data type क्या होते हैं? Like all of the special characters. Everyone see. All of the special characters like A, B, ऐसे करके Z तक, then capital A, capital B, ये सारे characters Z तक. All of the digits like 0, 1, 2, ये भी characters है everyone. Okay, 9 तक. Okay, and what other characters are? Like special symbols, dollar, ये देखिए ना, @ hash. इसको समझ आ रहा है? These are all characters. Character क्या होता है? Everyone, a single entity. Okay, any single symbol is known as character. Okay, any single entity is known, a single symbol is known as character. How many of you got this? Character के लिए how much byte is stored? ये character का होता है char. Okay, and how many bytes are stored for this? 1 byte. Okay, just 1 byte चाहिए होता है स्टोर कराने के लिए. Why? अगर थोड़ा सोचोगे ना, आस्की वैल्यूज होती है, उनके हिसाब से जब देखा गया मेनली, तो चेक बताया गया कि 256 एट मोस्ट कैरेक्टर्स हैं. अभी इतने ही है, मे बी इन फ्यूचर इट कुड गेट मोर, बट मोस्टली इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं. अब 256 एट मोस्ट कैरेक्टर्स हो सकते हैं. क्या डू यू थिंक कि हमें इतने बड़े नंबर्स की जरूरत है इंटीजर्स और लॉन्ग की? ऑब्वियसली डेटा वेस्टेज है. 256 साइज का नंबर ना हम 1 बाइट में स्टोर कर सकते हैं. हाउ? एवरीवन जस्ट सी. 1 बाइट में हाउ मेनी बिट्स आर देयर? 8 बिट्स. 1 2 3 4 5 6 7. अब एवरीवन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स है. तो एक के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? 2. मैं बोल रहा हूं देखो, 2 to the power 8 कितना होता है? Everyone just tell me. 256. So everyone got it? So 256 values can be filled here. Like starting कैसे होगी? एक सबसे पहली चीज है ये
0 0 0 0 0 0 0 0. This is the first possibility. Second possibility is this. Okay, third possibility is this. Getting everyone? ऐसे करके सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करोगे तो ऑल ऑफ द नंबर्स किसी एक बाइट में आ जाएंगे, रिप्रेजेंट हो जाएंगे. ओके, इन सबको डिफरेंट ASCII वैल्यूज आर गिवन. लाइक एवरीवन सी, अगर हमने कहीं लिखा, आई एम राइटिंग समथिंग, स्टोर कराना ना, इफ आई राइट समवेयर लाइक दिस, देखो कैरेक्टर x इज इक्वल टू a. एवरीवन सी, अगर मैंने कहीं कंप्यूटर में लिखा, मतलब अपने एडिटर में लिखा दिस, सो व्हाट हैपेंस नाउ व्हेन यू विल कंपाइल, इफ दिस इज द मेमोरी, सी दिस इज द मेमोरी. ओके, इसमें जाएगा एक ब्लॉक 1 बाइट का है, इसमें एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा. दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी नेम्ड एज x. ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा है, इसे x नेम दे दिया. अब ये मेमोरी एलोकेटेड है x के लिए. अब a है, एवरीवन ASCII ने इन सबको डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं. नंबर्स क्या दिए हैं? जैसे इसका ASCII वैल्यू होती है 97. एवरीवन सी, a की वैल्यू होती है स्मॉल a की 97, इसकी होती है 98. सिमिलरली इसकी होगी ना, आगे आगे बढ़ता जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली शायद 97 प्लस 26 माइनस 1 ये होगा. ओके, यू कैन कैलकुलेट इट. बी के लिए क्या होगा? 97 से स्टार्ट हो रहा है, एपी बना लो. 97, 98, 90, सी का होगा 99, डी का होगा 100. एवरीवन गेटिंग? तो जेड का कुछ ऐसा ही जाएगा जाके. कैपिटल ए का होता है 65, इसका होता है 66, समथिंग लाइक दिस. ऐसे करके इसका क्या होगा? 65 प्लस 26 माइनस 1. वैल्यूज क्यों दिए गए? हर्षा अब ये बताओ, हर्षा इज आस्किंग व्हाई दिस ASCII वैल्यूज दिए क्यों गए? बता दो क्या होता है. अब देखो ASCII वैल्यूज क्यों दिए गए. एवरीवन सी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अब हर्षा मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर्स हमारे 0 और 1 समझते थे, क्या वो समझते हैं ये स्मॉल a स्मॉल b? उन्हें नहीं समझ आता, उन्हें सिर्फ आता है 0 और 1 समझ. हमारे पास मेमोरी भी इस टाइप की है दैट दे स्टोर ओनली 0 और 1. 8 बाइट्स होते हैं एक बाइट में. ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 8 बाइट्स होते हैं. अब जस्ट टेल मी, इसमें एक कैसे स्टोर करोगे? ऐसे नहीं स्टोर होता, क्योंकि मेमोरी में ओनली 0 एंड 1 कैन बी स्टोर्ड. तो सारे चीजों को एक नंबर से एसोसिएट कर दिया. अब लाइक सी हियर, कैपिटल ए को स्टोर करना है ना, इसका करस्पॉन्डिंग ASCII नंबर इज 65. 65 है इसका ASCII नंबर. सो एवरीवन सी हियर, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करो. जिसको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में बताऊंगा, और जिसको नहीं आता वो समझ लेना. देखो 65 अप्रोक्सीमेटली ऐसे होगा कुछ. एक सेकेंड, 1 2 4 8, ये ऐसे यूज कर सकते हो. 32 64. अब देखो 0 0. सो ये है नंबर 65 का बाइनरी फॉर्मेट. ओके, नंबर क्या है? 1 0 0 1. देखो यहां से फिल करना स्टार्ट करो. 1 0 0 3 5 0 है. ये देखो कितने जीरो थे यार? 1 2 4 8 16 32 64. ओके, हाँ ये देखो, दिस इज द नंबर. ओके, 8 बाइट्स में. अब देखो कंप्यूटर नो 1 बाइट ये एलोकेटेड है एक कैरेक्टर x के लिए, इसके अंदर नंबर स्टोर्ड इज 65. ओके, बट अब देखो यहां पे लिखा था कैरेक्टर, इंटीजर तो लिखा नहीं था. अगर इंटीजर लिखा होता तो ये इसे रीड करता 65 की तरह, बट हेयर हमने कैरेक्टर के लिए एलोकेट किया था. yes or no? रवि उपाध्याय, आई थिंक यू आर रॉन्ग. लोकेश हैज गिवन द करेक्ट आंसर. यही है बाइनरी फॉर्म. बाइनरी ऑफ 65 विल बी दिस और नॉट? एवरीवन जस्ट टेल मी. किसको बाइनरी की नॉलेज नहीं है? ऑब्वियसली दिस विल बी द बाइनरी. ठीक है, अब नाउ एवरीवन सी, हियर हमने कैरेक्टर के लिए एलोकेट किया था, ये इसे दिखेगा. अगर हमने पूछा सी आउट, ऐसे देखो मैंने लिख दिया सी आउट एक्स, तो क्या होगा? कंप्यूटर प्लीज आउटपुट एक्स. तो कंप्यूटर जाएगा एक्स में. क्या है एक्स का? देखो ये जूम वर्जन है, इसमें एक नंबर लिखा हुआ है 010. इसे एक बाइट रीड करेगा. क्यों रीड करेगा एक बाइट? एवरीवन, व्हाई इट विल रीड ओनली 1 बाइट? क्योंकि एक्स इज कैरेक्टर टाइप, 1 बाइट एलोकेट हुई थी इसके लिए. तो यहां से स्टार्टिंग से 1 बाइट करेगा रीड, और इससे नंबर जो रीड होगा वो होगा 65. अब देखो 65 इसने रीड किया, बट क्या 65 विल बी प्रिंटेड?
नो, व्हाई? हियर इट वाज कैरेक्टर के लिए वी हैव अप्लाइड ना, सो इन द कंपाइलर ना इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड कि कैरेक्टर के लिए 65 अगर आ रहा है, that means it is equivalent to capital A. Everyone got it? So here cout text when we have written, it will print as capital A. चलो let me show you why. देखो इधर आते हैं. Is this VS Code screen visible? देखो एक प्रोग्राम बनाते हैं, data types dot cpp. देखो एवरीवन, ये तो सूडो टेम्पलेट याद कर लो, हैश इंक्लूड ये तो आदत लिखने की डाल लो, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना है, ओके एसटीडी पता ना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देते हैं तो बाय डिफॉल्ट एवरी टाइम तुम्हें एसटीडी सी आउट नहीं लिखना पड़ता. अगर डायरेक्टली सी आउट लिख रहे हो दैट मींस ऑटोमेटिकली एसटीडी का सी आउट यूज होगा. देन इंट मेन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च फॉर इंटीजर मेन, ओके रिटर्न जीरो. रिटर्न जीरो मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंबल दे रहे हैं कि यस वी हैव सक्सेसफुली रन. ओके चलो दिस वी नो. एवरीवन सी, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैर सी. कैर सी इज इक्वलिटी, एवरीवन सी, कैर सी इज इक्वलिटी कैपिटल ए. ओके कैर सी इज इक्वलिटी कैपिटल ए. अब देखना यहां पे मैं कुछ कर रहा हूं, प्रिंट सी. एवरीवन सी, मैंने ये लिखा, एक बार मैंने जस्ट ये लिखा, इसके लिए शॉर्टकट नहीं है जैसे HTML डॉक के लिए होता है, नहीं हर्षा अभी देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो, शॉर्टकट बाद में देखना. अब अगर मैं इसे रन करूंगा, एवरीवन सी हियर, रन कैसे करते हैं, जस्ट हियर राइट G++, G++ इज द कंपाइलर, कंपाइलर G++, प्लीज कंपाइल विच फाइल, फाइल नेम datatypes.cpp एंड उसका नेम दो, देखो कन्वर्ट इट टू ऑब्जेक्ट फाइल -o, उसको नेम दे दो डेटा टाइप्स. सेम ऐसे ही लिख देता हूं डेटा टाइप्स, ये लिख दिया तो देखना डेटा टाइप्स नाम लिखा है मैंने, यहां पे देखो डेटा टाइप्स की अभी कोई exe फाइल नहीं है. एज सुन एज आई विल एंटर हियर यू विल सी हियर, देखो डेटा टाइप्स डॉट exe इज मेड, करेक्ट एवरीवन. अब व्हेन यू विल राइट हियर डेटा टाइप, देखो डेटा टाइप्स डॉट exe लिखो, ओके एंड एंटर करो. एवरीवन सी, आफ्टर आई एंटर सी व्हाट इज प्रिंटेड हियर. Everyone able to see? Capital A is printed. Okay. अब everyone now see why it has printed capital A? क्योंकि हमने कैरेक्टर बनाया था. एक्चुअली में मेमोरी में ना 1 बाइट में 65 is stored. Everyone see, in the memory 65 is stored. ऐसे स्टोर होगा 10000001. ओके ये पूरी मेमोरी इज नोन एज C. इसमें 65 स्टोर्ड है बट यहाँ पे A प्रिंट हो रहा है क्योंकि कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई. इसने खुद ही ऑटोमेटिकली समझ लिया कि ये A है. अब देखो एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं यहां सी आउट कर रहा हूं C और एवरीवन सी, इसके बाद मैं देख लो एक स्पेस दिया, इसके बाद मैं कुछ लिख रहा हूं, एवरीवन सी इंट. ओके मैंने लिखा इधर इंट. ओके इंस्टेड ऑफ दिस एवरीवन सी हियर मैंने लिखा इंट x इज इक्वलिटी, देखो सेम मैं a लिख रहा हूं, ओके सेम a लिखा और यहां पे मैंने लिखा x. एवरीवन सी देखना क्या प्रिंट होगा, मैंने रन किया इसे, एवरीवन सी देखना क्या प्रिंट हुआ. सबको कुछ समझ आया? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट कि डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? ASCII वैल्यू, करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली तो ASCII वैल्यू स्टोर्ड है मेमोरी में. यस अब देखो एक्चुअली में क्या हुआ, ये तुम्हारा मेमोरी है तुम्हारे कंप्यूटर की, ओके इसमें तो देखो इसके केस में क्या हुआ था, 1 बाइट एलोकेट हुई थी, ये 1 बाइट एलोकेट हुई थी, इसको नेम दिया गया था C और इसके अंदर ना इस टाइप में ये इसका जूम व्यू है, जूम व्यू, ओके ऐसे करके स्टोर्ड हो गए थे 8 बाइट्स में. अब एवरीवन सी इसमें क्या हुआ, इंटीजर x लिखा, एवरीवन सी इंटीजर x, तो 4 बाइट्स विल बी एलोकेटेड, देखना 4 बाइट्स एलोकेट हुए. बट देखो इसमें स्टोर क्या होगा, स्टोर क्या होगा एवरीवन सी, क्या ये a कुछ है क्या एक्चुअली में, कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड इट. ये a ना ऑटोमेटिकली इसके बदले यहां 65 से रिप्लेस हो गया, समझ आया 65. तो यहां
ऐसे ए नहीं स्टोर होता है, यहाँ तो ये नंबर स्टोर होता है ना, इसके फर्स्ट पार्ट में ही ऐसे स्टोर हुआ होगा, एवरीवन सी ऐसे, और यहाँ पे सारे जीरो होंगे ऐसे करके, 0 0 0 0 0। समझ आया व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज एलोकेटेड एज नोन एज एक्स। किसको किसको समझ आया कि एक्चुअली इट इज नथिंग बट 65 ओनली, बट प्रिंट डिफरेंटली क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहां पे व्हेन वी आर प्रिंटिंग सी, सी इज व्हाट? सी इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर इसने रीड किया 65 आया। अब 65 क्या है कैरेक्टर में? कैरेक्टर में है ए, तो ए प्रिंट किया। यहाँ पे एक्स था 65, ओके, यहाँ पे ए लिखा था पर स्टोर यहाँ 65 हुआ था, बट एक्स क्या है? इंटीजर, तो क्या ए प्रिंट करेगा? अब इंटीजर है ना, इंटीजर के हिसाब से तो ये 65 हुआ ना, करेक्ट एवरीवन? इंटीजर के हिसाब से तो ये 65 हुआ, तो ऑब्वियसली 65 प्रिंट करेगा। सी में क्या प्रिंट कर रहा था? कैरेक्टर था, इसलिए ए प्रिंट किया। एक्स क्या है? इंटीजर, तो यहां पे स्टोर प्रिंट करेगा 65। एवरीवन गॉट दिस? बिकॉज ऑफ इंट, करेक्ट। चलो ये समझ आया। अब एवरीवन एक और चीज दिखाता हूं, यहां पे एक और चीज प्रिंट करते हैं। देखो कैरेक्टर दिखाया, कैरेक्टर में कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ए भी लिख सकते हो। अब देखो ए लिखा, तो यहां देखना क्या प्रिंट होगा, यहां प्रिंट होगा स्मॉल ए एंड 97। देखना स्मॉल ए एंड 97, सबका समझ आ रहा है बाइनरी नंबर क्या है? एवरीवन सी, यहां पे मैं लिख रहा हूं 0, ओके, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं 0। देखना 0 के लिए भी ASCII वैल्यू इज देयर। एवरीवन सी, व्हेन आई विल प्रिंट, एक तो 0 प्रिंट होगा एंड 0 का ASCII वैल्यू विल बी प्रिंट। 0 का ASCII वैल्यू इज 48। किसको समझ आया? कोई बता सकता है मुझे 1 का ASCII वैल्यू क्या होगा? थोड़ा गेस करो। 0 का अगर, यस वेरी गुड, 0 का अगर 48 है ना, साथ में ही होते हैं, ये 49 होगा, 2 50 होगा। तो एवरीवन इसका आंसर मुझे एक बार बता दो क्या होगा? इसका आंसर क्या प्रिंट होगा? गुड, वेरी गुड, 5 एंड 53। ओके, समझ आ रहा है क्या प्रिंट हो रहा है? अब एवरीवन एक बार ये और मुझे बता दो, फ्लोट लिखा इधर मैंने, फ्लोट मैंने लिखा y इक्वलिटी 5, और यहां पे मैंने ऐसे प्रिंट किया। देखो एक और स्पेस देके, स्पेस दिया, यहां प्रिंट किया y। बताओ जस्ट क्या प्रिंट होगा? मैं बता सकता हूं? नहीं, थोड़ा सोचो, देखो किसको किसको समझ आता है, देखते हैं किसने किसने सोचा कि यही प्रिंट होगा। यू नो व्हाई? देखो सिंपल सी बात है, 5 है, 53 जाके स्टोर हुआ। अब देखो ये फ्लोट नंबर है, बट फ्लोट नंबर में भी ना अगर कभी 000 होता है ना लास्ट में, तो ये आगे वाला ही प्रिंट करता है, ओके। बट सी, अगर मैं यहां पे ऐसा कर दूं 0.01, अब एक बार बताओ क्या प्रिंट होगा? तो सोचो, 5.01 नहीं ग्रीष्मा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 5 इज व्हाट? इट इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर की क्या वैल्यू होती है? इसकी है 53। समझ आया? तो इसकी जगह प्रिंट होगा। अभी देखो आउटपुट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि एक्चुअली में वर्क कैसे हो रहा है, ओके। किसको किसको समझ आया ये आउटपुट क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली में नंबर क्या है? 5 इज एक्चुअली इक्वलिटी 53। कैलकुलेशन होता है नंबर्स में, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स। कैरेक्टर सी 5, 5 डायरेक्टली प्रिंट हुआ। एक्स इज व्हाट? इंटीजर। इंटीजर में क्या थी वैल्यू 5 की? 53, तो 53 प्रिंट हुआ। फ्लोट बाई, देखो फ्लोट बाई, फ्लोट भी क्या स्टोर करता है? नंबर्स। नंबर्स अब कर रहा है। अब देखो कभी कैरेक्टर और नंबर्स को एडिशन करते हुए देखा है? किसी ने बोला तुमसे कभी ए में +5 करके बताओ क्या आंसर होगा? नोबडी आस्क यू, ऐसे तो ऑपरेशन ही नहीं होता ना। तो ए क्या होगा? पर ऑपरेशन किसके बीच में हो सकता है? टू इंटीजर्स के बीच में, करेक्ट। प्लस इंटीजर्स के बीच में हो सकता है, या फ्लोट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल। तो इसकी जगह ना 53 विल बी रिप्लेस्ड। अब 53 प्लस 0.01 क्या होगा? कैन आई से दिस विल बी द नंबर?
किसको किसको समझ आया? चलो गुड। नाउ एवरीवन सी, अब हमारा क्वेश्चन था कि एक्चुअल क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमें ये तो समझ आया कि कैसे कैसे स्टोर कराते हैं, ओके, डेटा टाइप्स। अब देखो, ये हटाता हूं। हमारा काम था एडिशन ऑफ टू नंबर्स, करेक्ट। हमें करना था, दो नंबर्स हमें लेने हैं कोई भी, जैसे 3 एंड 5। ये है दो नंबर्स, हमें इनका एडिशन प्रिंट करना है, मतलब 8 आना चाहिए आउटपुट। ओके, हाउ कैन आई डू इट? सिंपल। पहले तुमने क्या कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट? स्टोर ए, ओके, स्टोर बी, कैलकुलेट द आंसर, प्रिंट इट। यही तो स्टेप्स थे। तो देखो, स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करना है? ऑब्वियसली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। हाउ? a is what? Integer, right? int a is equality 3. Simple. What will happen? ये स्टेटमेंट रीड करेगा कंपाइलर, यहां आया मेमोरी में, इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स। तो देखो 4 बाइट्स विल बी टेकन, ऐसे 4 बाइट्स लिए, ये एलोकेट हो गए ए से। गॉट इट एवरीवन? ए, इसके अंदर नंबर क्या स्टोर हो गया? 3। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 1 होता है, करेक्ट। तो यहां पे ना ऐसे एक्चुअली में क्या स्टोर हुआ होगा एवरीवन सी? एक्चुअली में कुछ ऐसा स्टोर हो गया होगा, नंबर ऐसे स्टोर हो गया होगा 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे। एवरीवन गॉट इट? दिस इज नोन एज ए, ओके। ये मेमोरी में एलोकेट हो चुका है, 3 स्टोर हो चुका है। अगर मुझे सेकंड नंबर स्टोर करना है, हाउ कैन आई स्टोर इट? जस्ट राइट int b इज इक्वलिटी 5। अब मेमोरी में कहीं देखना, कहीं भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये जैसे 4 बाइट्स एलोकेट हुए, अब एवरीवन सी 4 बाइट्स एलोकेट हुए, बी से जाना जाएगा। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 101, यहाँ पे 101 ऐसे स्टोर हो गया और सारे जीरो होंगे, ये बी हो गया। अब एवरीवन सी, मुझे आउटपुट करना था कैलकुलेट, मैं बोल रहा हूं एक इंटीजर सी बनाओ, ओके। ये मेरा रिजल्ट बना लेते हैं। रिजल्ट क्या होगा? आई एम सेइंग रिजल्ट के लिए स्पेस एलोकेट करो। देखो 4 बाइट्स कहीं जाके एलोकेट हो जाएंगे, लेट्स से कि ये 4 बाइट्स एलोकेट हुए रिजल्ट के लिए, अभी खाली है इसमें, पर ये रिजल्ट है, इसे इस मेमोरी को एलोकेट किया है रिजल्ट के लिए। ये ए है, ये बी है, ये रिजल्ट के लिए एलोकेटेड है। आई एम सेइंग रिजल्ट का क्या आंसर होगा? मैं बोल रहा हूं रिजल्ट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना? यही तो होगा। तो क्या होगा देखो, सिंपल, इस पे आएंगे ए, कंप्यूटर से पूछेगा ए क्या है, ओके। ए तो कोई नंबर था, ए इज अ इंटीजर दैट इज स्टोरिंग 3, सो इसकी जगह रिप्लेस हुआ 3, ओके। कंप्यूटर पूछेगा बी क्या है, अच्छा बी इज द इंटीजर दैट इज स्टोरिंग 5, बी की जगह रिप्लेस हुआ 5। 3 प्लस 5 इज व्हाट? 8। रिजल्ट इक्वल टू 8। रिजल्ट में जाके क्या स्टोर हुआ? कहने से 8 स्टोर हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। अरे यार ये एक्स्ट्रा स्पेस, कांस्टेंट स्पेस, इतना मत अभी दिमाग लगाओ, जैसा अंडरस्टैंड करो, बेसिक चीजें ये, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस अभी मत सोचो, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस है, ओके। अब देखो, ये हमने 8 स्टोर किया, अब रिजल्ट के अंदर रिजल्ट है हमारे पास, तो क्या करना था? प्रिंट करना था। प्रिंट कैसे करते हैं? कंप्यूटर प्लीज आउटपुट व्हाट? रेस, करेक्ट और नॉट? तो देखो क्या होगा, मैंने किया cls, आई रन इट, देखो रन किया और देखना क्या प्रिंट होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? 8 प्रिंट हो गया, रिजल्ट में जो वैल्यू थी 8 प्रिंट हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग इन द मेमोरी? या किसी को डाउट है इसमें? हाँ करुचित, वो सही है, ओके। ओके, चलो समझ आई है। तो एवरीवन सी, अभी हमें करना था, नो आ गया समझ, ओके। अब देखो, अब हमें ये समझ आ गया है, ओके। अब जस्ट टेल मी, अगर मुझे दो ऐसे नंबर्स वो ऐड करने हो जो कि डेसिमल नंबर्स हो, सो हाउ कैन यू ऐड इट? ओके, मल्टीप्लाई करने हैं टू डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर लाइक 3.63 मल्टीप्लाई बाय 4.598,
ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। एंड देखो एवरीवन अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड यू हैव टू टेक इनपुट आल्सो फ्रॉम द यूजर। यूजर तुम्हें नंबर देगा एक कैलकुलेटर की तरह। यूजर ने एक नंबर एंटर किया 3.63, दूसरा नंबर ये ऐड किया, यूजर को इसका रिजल्ट प्रिंट हो जाए। लाइक एवरीवन सी, सो कैसे होगा काम? सिंपल सी बात है एवरीवन, हाउ कैन वी टेक इनपुट? देखो जैसे कंप्यूटर प्लीज आउटपुट रिजल्ट करते थे ना, और ये एरो यूज करते थे। एक होता है कंप्यूटर प्लीज इनपुट सी इन, और ऑपोजिट ऑफ दिस ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ओके, दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, दिस इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेशन। ओके, इंसर्शन ऑपरेशन ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। हाँ, सी इन इक्वल टू स्कैनफ, एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, सो एवरीवन एक बार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है, और वो भी दो कैसे भी डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, मतलब एक जो नंबर 1 होगा, पहले प्रॉपर्टी देखो, प्रॉब्लम हाउ टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट आर वी रिक्वायरिंग? पहले हमें इनपुट लेना होगा नंबर 1, इनपुट लो, इसका टाइप क्या होगा? फ्लोट, यस और नो? फ्लोट होगा। पहला ये स्टेप हुआ ब्रेक डाउन का। सेकंड स्टेप, एक तुम्हें नंबर 2 लेना होगा इनपुट। ओके, इसका टाइप क्या होगा? फ्लोट। ओके, थर्ड स्टेप क्या होगा? एक तुम्हें रिजल्ट स्टोर करने के लिए चाहिए होगा। यस, तो एक रिजल्ट बनाओ, इसका टाइप क्या होगा? ऑब्वियसली फ्लोट। इसे इनपुट नहीं लेना, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। ओके, ऐसे ही तो स्टेप होगा, नंबर 1 लो, नंबर 2 लो, रिजल्ट कैलकुलेट करो, फ्लोट टाइप का बनाना रिजल्ट, एंड देन प्रिंट करो रिजल्ट, प्रिंट रेस। चलो फॉलो करते हैं एक एक स्टेप। सो एवरीवन सी हियर, ये मैंने हटाया। ओके, देखना, सिंपल फ्लोट लो, एक बनाया फ्लोट नंबर 1, इसे ही बनाया। देखो नंबर 1 है तो फ्लोट टाइप, पहला नंबर फ्लोट num1 बनाया, बना दिया। ओके, इनपुट कैसे लेना है? लिखो सी इन, और ये साइड का ऑपरेशन। ओके, कंप्यूटर प्लीज टेक इनपुट, एवरीवन रीड विद मी, कंप्यूटर प्लीज टेक इनपुट इन व्हाट? num1 में इनपुट लो, num1 में। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, देखो अभी मैं बताता हूं, पहले दूसरा वाला भी कर लेते हैं। num2, इससे भी इनपुट लेना है, यहां लिखो फ्लोट, पहले बनाओ num2, एंड इसमें भी ले लो इनपुट num2। एवरीवन गेटिंग इट? ओके, देन नेक्स्ट स्टेप वाज व्हाट? एक रिजल्ट बनाओ दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप। सो फ्लोट, एवरीवन सी, फ्लोट रिजल्ट इक्वल टू व्हाट? देखो num1 इनटू, ये ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का, num2। करेक्ट एवरीवन? ऐसे ही होगा। देन प्रिंट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? कंप्यूटर प्लीज आउटपुट व्हाट? रिजल्ट। इसको समझ आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? कि दिस विल बी द प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। देखो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अभी मैं ये मिटा देता हूं। एवरीवन जस्ट टेल मी, अगर किसी नंबर में तुम्हें कोई वैल्यू इनपुट लेनी है, कैन आई से तुम्हें उसे स्टोर कराना पड़ेगा कहीं? जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन में भी तुम अगर कोई 3 तुम्हें स्टोर करना होता है तो तुम उसे किसी ना किसी नाम से बोलते हो। जैसे फर्स्ट नंबर मेरा 3 था, करेक्ट है ना? ब्रेन में भी तुम जब तुम 3 स्टोर कराते थे तो भी तुम कहीं उसे कुछ ना कुछ नाम देते थे। फर्स्ट नंबर 3 था, 3 स्टोर हो जाता था फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर 5 था तो ऐसे 5 स्टोर कराते थे, इसे नेम दे देते थे सेकंड नंबर। ओके, और प्लस भी कहीं स्टोर कराते थे कि हमें प्लस ऑपरेशन करना है। यस और नो? सिमिलरली हियर, अब देखो कंप्यूटर में क्या होगा, ये तुम्हारी मेमोरी है। ओके, तुम्हें कैलकुलेट तो करना है। एवरीवन देखो, अब तुम्हें इनपुट लेना है, किस में लोगे? अरे कुछ मेमोरी तो चाहिए होगी ना, उस चीज को कुछ कहोगे तो ना, कि कहीं भी डाल दो। तुम्हें इनपुट लेना है, यूजर ने डाला 3.63, 3.63 का कोई सिग्निफिकेंस है अगर तुम स्टोर ही नहीं कर रहे? फर्स्ट थिंग है, उसे स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट करो। अब देखो मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं? num1 नाम की मेमोरी एलोकेट करो, दैट इज गोइंग टू स्टोर फ्लोट। ओके, दैट इज गोइंग टू स्टोर फ्लोट।
ओके तो क्या होगा, फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स, समवेयर इन द मेमोरी 4 बाइट्स विल बी एलोकेटेड ऐसे। ओके 4 बाइट्स ये एलोकेट हो गई है। अब इस मेमोरी को नेम दे दिया है num1। ओके num1 दे दिया, अभी एलोकेट हो गई है। अब देखो नेक्स्ट लाइन आई, लाइन बाय लाइन होता है प्रिंट। ओके ये लाइन डन, सीन num1 कंप्यूटर प्लीज टेक इनपुट इन num1। ओके तो जो भी नंबर यूजर इनपुट देगा ओके वो इसके अंदर स्टोर होगा। समझ लो यूजर ने 3.63 डाला तो यहाँ पे 3.63 स्टोर हो जाएगा इन द बाइनरी फॉर्मेट। ओके 0 1 वो अकॉर्डिंगली इसके वर्क करेगा। ओके नेक्स्ट सेकंड थिंग, फ्लोट num2, यहां पे एक और बार मेमोरी एलोकेट होगी 4 बाइट्स। ओके 4 बाइट्स एलोकेट होंगी एंड यहाँ पे क्या समझ लो दूसरे यूजर ने डाला इनपुट 6.38। ओके यहां पे जाके स्टोर हो जाएगा 6.38। ओके देन व्हाट, यू हैव टू स्टोर द रिजल्ट। स्टोर किसमें करोगे, ऑब्वियसली दो फ्लोट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो किसमें तुम्हारा आंसर रहना चाहिए, फ्लोट ही तो होगा। अब बताओ दो फ्लोट नंबर्स का जब मल्टीप्लीकेशन होता है डेसिमल नंबर का, रिजल्ट क्या कैरेक्टर आता है या इंटीजर आता है रिजल्ट, मोस्टली तो फ्लोट ही रिजल्ट आएगा। जैसा नो तो फ्लोट एक वेरिएबल बनाया, देखो फ्लोट के लिए कहीं 4 बाइट्स एलोकेट हुई, ये रिजल्ट के नेम से जाना जाएगा। ये num2 था और यहां पे ये आया एक रिजल्ट नेम से। ओके रिजल्ट के अंदर डू व्हाट, देखो रिजल्ट के अंदर स्टोर करो व्हाट, इक्वल के आगे देखो लिखा है जो num1। num1 क्या है, व्हाट इज num1, कंपाइलर विल सी क्या num1 नाम का कुछ मेमोरी है। यस num1 में स्टोर है 3.63, यहां पे हो गया 3.63। num2 क्या कंप्यूटर हैज एनी मेमोरी दैट इज num2 नेम, यस इसके अंदर स्टोर है 3.6.38। ओके अब देखो दो नंबर्स आई हैव गॉट 3.63, इसका रिजल्ट आएगा कुछ भी x आया, ये रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया। देन व्हाट, प्रिंट कर दो रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर जो भी x है वो प्रिंट हो जाएगा, यहां x प्रिंट हो जाएगा मेमोरी में। चलो रन करके देखें, एवरीवन सी कैसे रन होगा। CLS देखो मैंने किया, ये रन किया, देखो अभी कुछ हो नहीं रहा है। एवरीवन सी स्टॉप हो रखा है, व्हाई, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ना वेट कर रहा है, पता है किसका, इस लाइन का, कंप्यूटर प्लीज टेक इनपुट इन num1। अभी हमने कुछ नहीं किया ना, इसलिए भी वेट कर रहा है। अभी देखना मैं एक नंबर डाल रहा हूं 3.63। ओके आई एंटर 3.63 और जैसे मैं एंटर करूंगा देखना एक और बार वो ब्लैंक बता रहा है। पता है इस बार ब्लैंक किसके लिए बता रहा है, कंप्यूटर प्लेस टेक इनपुट इन num2। num2 में बोल रहा हूं 6.85। ओके 6.85। अब देखो इस बार जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो num2 के अंदर 6.85 स्टोर हो जाएगा और देखना सीधे रेस प्रिंट होगा। अभी देखना एंटर दबाते ही, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, क्या आंसर करेक्ट मिल रहा है हमें, व्हाट वी वांटेड, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस, करेक्ट। अब नाउ एवरीवन जस्ट टेल मी कि किस किस को अभी तक कुछ डाउट है। नो डाउट सर, पक्का किसी को भी छोटा मोटा भी डाउट हो कि कैसे स्टोरिंग हो रहा है, कैसे कैलकुलेशन होता है, नो डाउट, ओके फाइन। अब एवरीवन देखो हम कहां पे थे इसमें, इधर पे आते हैं। हम लोगों ने ये डेटा टाइप्स बुक किए थे डिस्कस कि कैरेक्टर्स भी एक्चुअली स्टोर होते हैं इंटीजर फॉर्मेट में, इनके आस्काई वैल्यू फॉर्मेट में होते हैं। ओ यार कहां गए ये, हाँ रेस्ट टू इंट करो तो ओके। अब देखो एवरीवन एक और चीज इसमें चेंज करता हूं। ओके इज द स्क्रीन विजिबल ना, VS कोड। अब देखो अगर मैं रिजल्ट को इंस्टेड ऑफ फ्लोट इंट लिख देता, एवरीवन सी, अगर इंस्टेड ऑफ, देखो इंस्टेड ऑफ फ्लोट रिजल्ट को इंट कर देता तो क्या डिफरेंस आता, कैन एनीवन टेल मी। अब देखो सेम इनपुट है ना, मैं इधर से कॉपी कर ले रहा हूं, देखना मैं रन करूंगा तो डिफरेंस देखना एवरीवन, पुराना आउटपुट भी है और अभी का आउटपुट भी है। Why 24 दिस टाइम, देखो
पिछली बार आ रहा था 24.8655। वाई? सिंपल सी बात है यार, देखो नम वन तुम्हारा गया 3.63, ये 3.63 आया नम वन में, नम टू में आया 6.85। फाइन, ये मल्टीप्लाई हुए, ये मल्टीप्लाई हुए, आंसर तुम्हारा देखो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का आंसर तो तुम्हारा आया 24.8655, क्योंकि दोनों फ्लोट का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आता है फ्लोट, ये तुम्हारा हुआ। बट सी रेस इज व्हाट? इंटीजर। सो इंटीजर क्या लेगा? इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लेगा, करेक्ट और नॉट? डेसिमल पार्ट डिलीट कर देगा। दैट्स व्हाई रिजल्ट में ओनली स्टोर हुआ डेसिमल ओ इंटीजर पार्ट। सर अगर रेस टाइप करके प्रिंट करवा दे तो, रेस टाइप करके प्रिंट करा दे, व्हाट, क्या मतलब? डोंट शो नंबर, यस करेक्ट, ओनली इंट पार्ट, गुड। सो क्या पूछ रहे हो रवि? रेस टाइप करके प्रिंट करवा दे तो, इसका नहीं मतलब समझ आया सर। इंट ऑफ फ्लोट ना लिखे तो, अरे ऑब्वियसली इंट ऑफ फ्लोट ना लिखो तो एक तरीका है कि तुम या तो डायरेक्टली ये कॉपी करो, सी है एवरीवन, ओहो ये कॉपी किया और ये हटा दो। एवरीवन सी, अब देखो रेस में एरर देगा, क्यों? एवरीवन सी देखो एरर क्या दे रहा है, देखो एरर क्या देगा, आइडेंटिफायर रेस इज अनडिफाइंड। अरे सी प्लस प्लस इसे ढूंढ ही नहीं पा रहा कंपाइलर। अबे रेस नाम का जब तुमने कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया, उसके लिए कोई मेमोरी नहीं एलोकेट की, रेस कुछ होगा? अरे कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड फ्लोट। देखो नम वन को जानता है, वो जानता है कि फ्लोट टाइप की एक मेमोरी एलोकेट हुई है 4 बाइट्स की। नम टू को जानता है, रेस क्या है? रेस को नहीं जानता, एलोकेट ही नहीं किया। या तो यहाँ पे लिख दो ऐसे फ्लोट रेस इक्वल टू समथिंग, तो वो समझ जाएगा, देखना अब ये समझ रहा है, बट ऐसे नहीं समझेगा। तो देखो अब तुमने वो तो किया नहीं, रेस अगर नहीं करना चाहते ना तो डायरेक्टली ये कर सकते हो, ये लिख दो, क्या गया, लिख दो नम वन इंटू नम टू, ये भी सेम रिजल्ट देगा। एवरीवन सी, अगर मैंने ये किया, एवरीवन सी मैंने रन किया इसे प्रोग्राम को, और यहाँ पे सेम इनपुट कॉपी किया, अब देखो आंसर क्या प्रिंट हो रहा है, 24.8655। इस बार कंप्यूटर ने इंटरनली अपना डेटा स्टोर किया, अलग वेरिएबल नहीं बनाया। गेटिंग? इसने कैलकुलेट, नम वन आया 3.63, यहाँ पे हुआ 6.85, कैलकुलेट हुआ इनका मल्टीप्लीकेशन ये, और डायरेक्टली प्रिंट हो गया, बट ये स्टोर नहीं हुआ कहीं भी। गेटिंग एवरीवन? रिटर्न में लिख सकते हैं ना, रिटर्न में लिख दोगे तो प्रिंट थोड़ी हो जाएगा मिशल, रिटर्न में लिख दोगे तो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जीरो वैल्यू नहीं जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम बोले अच्छा प्रोग्राम सही से रन नहीं हुआ क्या, तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन जाएगी उसके पास और नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग एवरीवन? क्या होता है एक्चुअली ऐसे? अब एवरीवन ये बताओ, मैं इसके आगे अगर ऐसा लिख दूं इंट, तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? यस ऑब्वियसली प्रिंट होगा 24। 24 किसको किसको समझ आया क्यों प्रिंट होगा 24? देखो इनका कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 24.8655, बट एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने बाद में लिखा है इंट पार्ट इसका प्रिंट करो 24, इंट पार्ट इसका है 24, तो 24 प्रिंट होगा। एवरीवन सी, मैंने इसे रन किया, सेम इनपुट को पेस्ट किया और देखना इस बार आंसर प्रिंट होगा 24। अब एवरीवन सी, अगर मैं लिख दूं कैरेक्टर तो क्या प्रिंट होगा? सर अब इंट और फ्लोट की जगह पर ऑटो लिख सकते हैं, हाँ हाँ वो लिख सकते हैं ऑटो, ऑटो का भी बाद में समझाऊंगा यार, अभी छोड़ दो, पहले डायरेक्ट सब जानना है। ये देखो कोई सिंबल प्रिंट हुआ है, किस किस को समझ आया कि कोई सिंबल प्रिंट हुआ है? अगर मैंने कैरेक्टर लिखा 24 के करस्पॉन्डिंग ना ये सिंबल होता है, एवरीवन गेटिंग? 24 के करस्पॉन्डिंग ये सिंबल होता है, समझ आया? अगर मैं कोई और नंबर लिख दूं, एवरीवन सी, अगर मैं यहां पे प्रिंट कर दूं, देखना नंबर इस पर कुछ और लेता हूं 2.45 और देता हूं 3.12, तो एवरीवन देखना
कोई सिंबल प्रिंट हुआ है, स्पेस स्पेस प्रिंट हुआ है, कोई सिंबल होगा, और ऑब्वियसली स्पेस भी एक वो है, ओके स्पेस है, क्या 32 स्पेस है। फ्लोट के मैक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो, फ्लोट के अगर मैक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एवरीवन जस्ट टेल मी, कि एक मेमोरी है, समझो ये फ्लोट मेमोरी है, इसका साइज है 4 बाइट्स का, ओके समझ लो ये ओवरफिल्ड है, ओवरफिल्ड मतलब फुल्ली फिल्ड है, मतलब इसकी पूरा 10 टू द पावर, अभी के लिए समझ इंटीजर से एग्जांपल लेते हैं, ओके इंटीजर से, इंटीजर है ये 4 बाइट स्टोर है, इंटीजर है ये 4 बाइट्स का, ओके इंटीजर की मैक्सिमम रेंज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 9, इसमें 10 टू द पावर 9 स्टोर्ड है इस मेमोरी में, इसमें भी 10 टू द पावर 9 स्टोर है, ओके अब जस्ट एवरीवन टेल मी, तुम्हें इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है, ये भी इंट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, डेसिमल में नहीं होती है, इंटीजर पार्ट ले लेता है कैरेक्टर, ओनली कैरेक्टर इंटीजर पार्ट ले लेता है, करेक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 टू द पावर 18, अब जस्ट टेल मी क्या ये इंटीजर इस 10 टू द पावर 18 को स्टोर कर पाएगा, ऑब्वियसली नो, करेक्ट, अरे जब मेमोरी इंटीजर जब स्टोरी मैक्सिमम कर सकता है 10 टू द पावर 9 साइज का नंबर, 10 टू द पावर 18 तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है उससे, तो ऐसे टाइम पे व्हाट हैपेंस इज ना, दैट इज नोन एज इंटीजर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हो गया, मतलब जैसे एक जग होता है ना, ये जग है, इसमें पूरा डेटा फिल करते रहो, जैसे एक बार पानी एक बार ज्यादा हो गया ना उससे रेंज से, तो बाहर फैल जाता है, तो सेम इसमें इंटीजर ओवरफ्लो हुआ है, एवरीवन गॉट दिस पार्ट, इस कंडीशन को कहते हैं इंटीजर ओवरफ्लो, और ऐसी फ्लोट में जब हो रहा ओवरफ्लो, फ्लोट ओवरफ्लो, ओके समझ आया, तो ऐसे टाइम पे व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन इंटीजर यू हैव टू स्टोर इट इन लॉन्ग, लॉन्ग इतना साइज का नंबर कर सकता है कैलकुलेट, स्टोर, एवरीवन गॉट इट, लॉन्ग इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, सिंपल सी बात है, ओके लॉन्ग इतने बड़े नंबर को कर सकता है, ओके चलो हमने ये सब तो समझे, ओके अब हमें ये तो आ गया कि नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कि वैल्यू कहीं तो स्टोर हो रही है ना, तो प्रिंट होने से पहले, यस आज सत्यम का डाउट एक बहुत अच्छा है कि num1 और num2 की वैल्यू जब कैलकुलेट हो रही है कहीं तो स्टोर हो रही है, ऑब्वियसली स्टोर होती है, वो रैम में ना कुछ रिजर्व स्पेस होता है फॉर कैलकुलेशंस, कंपाइलर कुछ ना कुछ स्पेस स्टोर रखता है, ओके दैट्स व्हाई उसी के अंदर मेनली ये काम होता है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, ओके प्राइमरी मेमोरी में, ओके सिंपल सी बात है, कुछ तो स्पेस रखना पड़ेगा ना, अगर सारा स्पेस तुम ही यूज कर रहे हो मेमोरी का ये वाला पार्ट, तो भी उसे कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस रिजर्व कर देता है, कि देखो जो भी तुम्हें डेटा टाइप्स बनाने हैं, स्टोर करना है डेटा, इस वाली रेंज में मत करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि इतने के अंदर ही एलोकेट करना, अगर तुमने फ्लोट नंबर लिखा है यहां पे फ्लोट नंबर के लिए हो एलोकेट, डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए रिजल्ट रहता है, हाँ ओके एवरीवन जस्ट टेल मी, इसमें किसी को डाउट है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब, ओके सो हमने ये लर्न कर लिया कैसे इनपुट लेते हैं, एवरीवन जस्ट टेल मी, तुम्हें मैं एक टास्क दे रहा हूं, एक बार सब लोग अपने कमेंट्स में एक अभी कोड पेस्ट करना, ओके जल्दी से कोड करके, तुम्हें 3 नंबर्स लेने हैं इनपुट, ओके टेक 3 नंबर्स इनपुट, ओके इंटीजर नंबर्स, टेक 3 इंटीजर नंबर्स इनपुट एंड, अरे ऐसे नहीं एक बार पूरा कोड लिखो फिर करना, एंटर दबाते ही वो प्रिंट हो जाता है, ऐसे नहीं काम चलता, एंड ऑल द 3 एंड प्रिंट 3 नंबर्स होंगे ए बी सी, तो तुम्हें ये इसका रिजल्ट प्रिंट करना है, देखो a इंटू बी प्लस 3c, इस इक्वेशन का रिजल्ट प्रिंट करना है, कौन है भाई
हर्षा तुम भी करो, आता है तो भी करो। ओके, आता है तो जल्दी करो ऑब्वियसली। ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 नंबर्स आए, जैसे कि तुमने एक इनपुट किया 1 एक में, इसमें किया 2, इसमें किया 3, तो आंसर होगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 प्लस 9 11, सो 11 शुड बी द आंसर प्रिंटेड। गुड सत्यम। गुड ग्रीष्मा। गुड हर्षा। गुड अभिषेक। मिशेल पॉल। गुड मिशेल। व्हाट अबाउट अदर्स? मन नहीं है? चलो 2 मिनट और है। ओके, 40 पे मैं करता हूँ, 41 पे, 39 हो रहा है मेरे लैपटॉप में। गुड अभिषेक। ओके। ओके, गुड वेदिका। गुड ओम। ओके गुड रवि। गुड आदित्य। उत्कर्ष। करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? हमेशा लैपटॉप लेके बैठा करो, एक्टिव लर्निंग करो। सर टाइपिंग स्लो है, कोई बात नहीं, फास्ट हो जाएगी। साथ में कोड किया करो जो भी बोलता हूँ। ओके। एवरीवन चलो थोड़ा सा मिसलेनियस करने की ट्राई करें। ऑब्वियसली चलो पहले इसका आंसर बता देता हूँ। सी एवरीवन, हमारा क्या था टास्क? 3 इनपुट लेने इंटीजर्स। सो सिंपल 3 इंटीजर्स बना लो, आईएनटी ए, आईएनटी बी, आईएनटी सी। देखो एक वे है 3 इंटीजर्स डिक्लेयर करने का दिस। अदरवाइज ना, अगर बार बार ऐसे नहीं लिखना, यू कैन डू इज बी और सी डिक्लेयर करना ना, एक बार इंट लिख दो एंड कॉमा सेपरेट कर दो। ओके, तो इससे क्या होगा, इंटीजर के एलोकेट हो जाएंगे 3 मेमोरी, एक ए, एक बी, एक सी, तीनों है इंटीजर टाइप। ओके, इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। गॉट इट एवरीवन? ये इक्विवेलेंट है ये दोनों स्टेटमेंट्स। ओके, तो कैसे भी लिख सकते हो। अब नाउ 3 इंटीजर्स मैंने डिक्लेयर कर दिए, टेक द इनपुट। देखो एक वे है ऐसे लिख दो, सी इन ए, सी इन बी, सी इन सी। ओके, अदर वे ऑफ राइटिंग इज एक साथ लिख दो। एक साथ कैसे लिखो? सी इन ए, बी, सी। एवरीवन गेटिंग इट? पहले इनपुट लेगा ए में, फिर बी में, फिर सी में। एक साथ वर्क कर सकते हैं, अलग अलग लिखोगे देन ऑल्सो इट विल वर्क। फाइन एवरीवन? आफ्टर दिस क्या कैलकुलेट करना था? ये प्रिंट करना था इस इक्वेशन का रिजल्ट। लिखो सिंपल सी आउट। सी आउट व्हाट? देखो एवरीवन सी, ए इंटू बी, सो ए इंटू बी प्लस प्लस। अब देखो 3C कुछ नहीं होता, तो लिखना होगा 3 इंटू सी। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? 3C इज इक्वल टू एक्चुअली 3 इंटू सी। करेक्ट और नॉट? तो जस्ट दिस विल वर्क फाइन। चेक कर ले। सी, इससे मैंने रन किया, पहले नंबर को डाला 1, देखो 1 डाला, एंटर किया। सेकंड नंबर डाला 2, एंटर किया। थर्ड नंबर डाला 3, एंटर किया। 11 आंसर आया। You can see 11 is the answer. Everyone got this?
ओके चलो एवरीवन, इसका आंसर बताना मुझे। एक बार मैं कुछ लिख रहा हूं इधर। ओके यहां पे मैंने बनाया कैरेक्टर सी इज इक्वलिटी कैपिटल ए। ओके यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं, देखो एवरीवन, सी प्लस 2। एवरीवन जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। आस्काई वैल्यूज बता दूं। एक ही आस्काई वैल्यू होती है 65, सोच लो ऐसी। सिंपल सी चीज है, देखो एवरीवन, इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं रन करूंगा तो यू विल सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर गिविंग करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली 67। ओके 67। अब देखना व्हाई, व्हाट इज दिस, कैरेक्टर प्लस इंटीजर, करेक्ट, कैरेक्टर प्लस इंटीजर इज इक्वलिटी इंटीजर। ओके इंटीजर को मोर प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखना सी क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए इज इक्वलिटी 65, 65 प्लस 2 67। एवरीवन गॉट इट, क्यों आया 67 आंसर। ओके बट एवरीवन सी, अगर मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं छोटी सी, देखना इसके आगे मैं लिख देता हूं कैर, कैर। अब जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। गुड आदित्य, गुड सत्यम, रॉन्ग रवि, yes very good, very good. Those who are saying small e na c, that is wrong, it will be capital C. Okay you can see why, everyone see why is capital C। everyone see what happens, C is equality 65, ये हुआ 65, 65 प्लस 2 हुआ 67। अब बताओ मैंने ये लिख रखा है कैरेक्टर 67, व्हाट इट इज टेलिंग आवर कंपाइलर टू, बोल रहा है कैरेक्टर में 67 का सिग्निफिकेंस क्या है। गेटिंग एवरीवन, कैरेक्टर में 67 का सिग्निफिकेंस क्या है। अरे कैपिटल ए 65 है, कैपिटल बी 66 होगा, साथ में ही होते हैं, कैपिटल सी 67 होगा। डोंट यू थिंक कैरेक्टर में 67 इज इक्वल टू सी। आस्काई वैल्यूज, गुड, आस्काई वैल्यूज है ये सब। ओके सो समझ लो कंप्यूटर एक्चुअली कैसे प्ले करता है इन नंबर्स और कैरेक्टर्स के साथ। एक्चुअली एवरीथिंग इज 0 एंड 1 इन कंप्यूटर्स। ओके ये जो कैरेक्टर दिख रहा है ना, ये भी एक्चुअली नंबर ही है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, जस्ट द वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट। ओके एवरीवन जस्ट टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। बताओ इससे क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एवरीवन सी। चलो देखते हैं कितने लोगों का ब्रेन काम करता है। दिस इज जस्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज, देखते हैं, अपना दिमाग खोल के रखना। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आउटपुट टाइप प्रोग्राम्स में आते हैं कोडिंग राउंड में। देखो आस्काई वैल्यूज बता दूं, कैपिटल ए की होती है 97, इसकी होती है 65, स्मॉल ए की 97, कैपिटल ए की 65। ऑब्वियसली आगे वालों के तो समझ ही गए होंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट, फास्ट करो फास्ट। ब्रेन ओपन रखोगे तभी कुछ सीखोगे। -7, 195। ओके 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 इसका बताना, सॉरी अब सही है। इसका बताओ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आउटपुट बताना। किसी का नहीं आया। वेरी गुड ग्रीष्मा, गुड गुड गुड।
नहीं ओम, रॉन्ग। चलो लॉजिक लगाएं थोड़ा। अरे इतना तो इजी है, रिपीट करो सर। आज का ही वैल्यूज रिपीट करें सर। ओके करते हैं अभी, रुको इनका। ओके सी हियर एवरीवन, जस्ट टेल मी कैपिटल ए 97 है, प्लस ऑपरेटर किस पे काम करता है? इंटीजर्स पे। तो ऑब्वियसली पहले ये इंटीजर्स में कन्वर्ट होंगे। माइनस ए लिखा है एवरीवन सी, इसकी जगह क्या रिप्लेस होगा? 97, यस और नो? एवरीवन सी, इसकी जगह रिप्लेस होगा 97। कैपिटल ए की जगह व्हाट विल बी रिप्लेस्ड? कैन आई से 65? जस्ट टेल मी सी की जगह क्या रिप्लेस होगा? अगर ए 65 है तो बी कैन आई से विल बी 66 एंड सी विल बी 67। ओके, एंड अगर ए 97 है तो स्मॉल बी विल बी 98, स्मॉल सी विल बी 99 एंड स्मॉल डी विल बी 100। सो एवरीवन सी कैसे कैसे रिप्लेस हो रहा है? ये रिप्लेस होगा 67 से, ये रिप्लेस होगा टू व्हाट? 100। अब देखो, -97 प्लस 65 माइनस 67 प्लस 100, what will be the result of this? How many of you can tell me? This will be -2, this will be +3, don't you think? And it is equal to 1. How many of you got it? So what is happening? And see, when I will run this program, what is printed here? Everyone got it? Why 1 is the answer? Okay, चलो एक और मिसलेनियस एग्जांपल करें। एवरीवन जस्ट टेल मी क्या प्रिंट होगा इस पे? ओके, इसमें एवरीवन जस्ट टेल मी क्या प्रिंट होगा? I want all of your brains to actively work. That's why I am giving you some questions also. Good Aditya. Good. Good Grishma. Good Ruchit. Good Michelle. Very good. ओम वाली है 99। चलो देखते हैं। एवरीवन जस्ट सी हियर क्या हो रहा है? कैपिटल स्मॉल ए इज इक्वल टू 97, ये कैपिटल ए इज इक्वल टू 65, इट इज इक्वल टू व्हाट? 67, करेक्ट? कैलकुलेट करते हैं। 97 माइनस 65 प्लस 67 क्या होगा? ये हुआ +2, तो हुआ 97 + 2, दैट इज इक्वल टू 99। अब 99 है, अब देखो इस टोटल, ये टोटल है इक्वल टू 99, 99। तो हमारी इक्वेशन चेंज टू व्हाट? कैरेक्टर ऑफ 99। कंप्यूटर से बोल रहे हैं, कंप्यूटर प्लीज प्रिंट 99 कैरेक्टर। करेक्ट? 99 पे क्या कैरेक्टर होगा? जब A 97 है, B 98 है, तो C क्या होगा? 99। तो एवरीवन क्या प्रिंट होगा? कंप्यूटर बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल डायरेक्टली तरीके से वर्क करता है। स्मॉल सी, एवरीवन गॉट दिस? कीड़ों ने तो हद कर दिया। किसको किसको समझ आया? इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं अभी? ये बताओ। ओके चलो ठीक है, ये समझ आया। अब एवरीवन थोड़ा सा बता देता हूं कुछ। एक होता है, अभी तुम लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि मैंने कल ये तो बता दिया था कि ये जो IO स्ट्रीम होता है, दिस इज अ हेडर फाइल। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताता हूं। ओके, अब ये सब लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। मैंने अपने फुल स्टैक वाले बैच में बताया था, पता नहीं कितनों को याद होगा। IO स्ट्रीम तो मैंने बताया था कि एक हेडर फाइल होती है, करेक्ट? हेडर फाइल होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है इन सब की। सी आउट क्या काम करेगा, सी इन कैसे काम करेगा, करेक्ट एवरीवन? बट क्या मैंने ये बताया था ये इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड की वर्किंग समझनी है?
ओके तो एवरीवन एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं ना हैश इंक्लूड कुछ नहीं है, ये सिंपल करता है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, समझ आया? हैश इंक्लूड इज नथिंग बट कॉपी पेस्ट, इन्हें कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी देखना कैसे, एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। देखो कैसे एग्जांपल दूं? ओके एवरीवन सी, ओके देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं हैश इंक्लूड, देखना हैश इंक्लूड एक फाइल बनाऊंगा माई फाइल, ये लिख दिया मैंने, एवरीवन गॉट दिस, मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड माई फाइल, फाइन। ओहो ओहो कहाँ गया? ऐसे लिख सकते हैं, अभी देखो कुछ दिखाता हूं। एवरीवन सी, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, एक देखो फाइल बना रहा हूं, नॉर्मल से टीएक्सटी फाइल बनाऊंगा। ओके देखो माई फाइल डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी फाइल तो जानते हो ना, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नोटपैड से जो बनाते हैं, एंटर किया, देखो एक माई फाइल डॉट टीएक्सटी बनाई है। एवरीवन सी, इसमें मैं कुछ लिख रहा हूं, एवरीवन सी इसमें क्या लिख रहा हूं, एक नेम स्पेस लिखता हूं, देखना नेम स्पेस क्या लिखे, कोई नेम लेते हैं, ओके हर्षा लेते हैं, ओके नेम स्पेस हर्षा, देखो सी प्लस प्लस फाइल नहीं है ये, नॉर्मल सा मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, नेम स्पेस हर्षा ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, नेम स्पेस हर्षा के अंदर लिखा है मैंने इंट एज, एज इक्वल टू लिख दिया है 91, अरे ज्यादा हो गई क्या, चलो 21 कर देते हैं, ओके एवरीवन सी, तो मैंने ये लिखा है यहां पे, करेक्ट। अब देखो मेरे पास है यहां पे फाइल, सॉरी ये रही, ये है, एक्सपेक्टेड ऑफ फाइल नेम, फाइल ही नेम तो दे रहा हूं, प्रॉब्लम क्या आ गई आज? दिस शुड वर्क फाइन, चल जाए यार, ओके और वन सी, यहां पे मैं लिख रहा हूं कुछ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ओके 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 सॉरी, में कीड़े आ रहे हैं क्या बताऊं मैं, ओके एवरीवन सी, मैंने कुछ इस टाइप में लिखा है हैश इंक्लूड, देखो मैंने यहां पे अगर सोचो, मैं हैश इंक्लूड जब मैं नहीं लिखता था आईओ स्ट्रीम, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, देखो अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा, कहने से एरर आएगा, ये से नो, ऑब्वियसली एरर आएगा ना, आईओ स्ट्रीम के अंदर सी आउट बोल देगा, सी आउट इज अनडिफाइंड, सी आउट इज अनडिफाइंड, ओके देखो मैंने बिना आईओ स्ट्रीम मैंने यहां लिख रखा है, एवरीवन सी यहां लिख रखा है ऐसे, तो यहां पे मैं देखो क्या इंक्लूड कर रहा हूं, मैं यहां इंक्लूड कर रहा हूं हैश इंक्लूड, देखो इसकी फाइल नेम इसमें कॉलम्स में लिखा जाता है, ओके देखो माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ओके इसमें लिख रहा हूं, पर देखो एरर चला गया है, अभी देखना मैं कुछ कर रहा हूं सीएलएस प्रिंट किया, और देखना इसके लिए जो आंसर आना था वो आएगा सी, अच्छा ये कैसे वर्क हुआ, मैंने तो आईओ स्ट्रीम लिखा भी नहीं यहां, अच्छा एक और चीज दिखाऊं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सी आउट, देखना हर्षा और कोलन में लिख दिया एज, देखो ये लिख दिया, और मैं इसे रन कर रहा हूं, एवरीवन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अच्छा 21, ये 21 कैसे आ रहा है, मैंने तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, किसी को कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली, वर्क कैसे कर रहा है, देखो मैंने तो यहाँ टेक्सटुअल फाइल में कुछ लिखा था, किसको किसको समझ आया?
देखो सिंपल कुछ नहीं है एक्चुअली ना। प्री प्रोसेसिंग स्टेज पे मैंने बताया था ना, एक स्टेजेस होते हैं ना, जैसे एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के बाद ये जाता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में, प्योर एचएलएल में। मैंने इसमें बोला था बीच में होती है प्री प्रोसेसिंग स्टेज, प्री प्रोसेसिंग स्टेज बोला था कुछ मैंने ऐसा। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? एवरीवन याद है ना? तो मैंने प्री प्रोसेसिंग स्टेज में क्या लिखा था, मैंने बोला हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड तुम 5 लाइंस का लिखते हो, एक्चुअली वो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड हो जाता है। यस और नो? कुछ ऐसा बोला था? तो 1000 लाइन कोड क्यों होता है? मैंने यही तो बोलता, यहाँ पे जो हैश इंक्लूड लिखते हो आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम की सारी फाइल कॉपी पेस्ट होती है। तो एक्चुअली में ना दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, देखो एक्चुअली ना जैसे कंपाइलर स्टार्ट होता है रन, प्री प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होता है, देखो ये वाली स्टेटमेंट है, अभी देखना ये वाली स्टेटमेंट यहां से डिलीट हो जाती है। ओके, डिलीट हुई। अब जहां पे लाइन लिखी थी ना वहां पे क्या होगा देखना, ये होता है कॉपी, एवरीवन से ये होता है कॉपी, और यहां जाके हो गया पेस्ट। अब किसको किसको समझ आ रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली? हाउ मेनी ऑफ यू नाउ गॉट इट? समझ आया? इंक्लूड क्या करता है, जो फाइल नेम आगे लिखी होती है उसे पेस्ट कर देता है, सिंपल। इसीलिए लाइन ऑफ कोड्स इंक्रीज हो जाते हैं। समझ आए? इसीलिए वहां पे जो लिखा हुआ था हर्षा वो सब, हर्षा का एज, ये वाला इसलिए प्रिंट हो रहा था। आईओ स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो यहां से पहले ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम होता था और फिर इसकी फाइल प्री प्रोसेस होती थी। समझ आया? फिर इसमें वापस ये लाइन रीड करता था, एक और बार प्री प्रोसेसिंग होती थी, फिर आईओ स्ट्रीम की कॉपी होती थी पेस्ट। गेटिंग और नॉट? ये जो आईओ स्ट्रीम जैसे खुला हुआ है, पहले यहां से पेस्ट होके यू आया, ये आया, फिर आईओ स्ट्रीम देखा, अच्छा आईओ स्ट्रीम में भी हैश इंक्लूड है, फिर ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वाली पूरी फाइल है ना, यहाँ पे ऐसे आती है, देखो एवरीवन, ये वाला इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वाली है, इसकी जगह ये पूरा लाइन का कोड आ गया। मतलब समझ रहे हो, ये छोटा सा कोड था, ये हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा। और इसमें भी क्या होगा एवरीवन सी, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लिखा है ना हैश इंक्लूड ओ स्ट्रीम, इसकी जगह भी ओ स्ट्रीम वाला फाइल आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस, कि कैसे होता है काम, कैसे प्योर हाई लेवल कोड बन जाता है? हाउ डज द कंपाइलर लिंक आईओ स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट फाइल टू हेडर फाइल ऑफ ओम? क्या पूछ रहे हो? समझ नहीं आया? ये देखो एक्चुअली में हैश इंक्लूड कुछ नहीं करता, हैश इंक्लूड इज जस्ट अ डू अ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। क्या कॉपी पेस्ट ऑपरेशन? जो इसके आगे फाइल नेम लिखा होता है, ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इसके आगे फाइल नेम लिखा होता है उस पे जाता है लोकेशन पे। अच्छा, ये डेटा लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट हो कुछ भी फॉर्मेट हो, इसके पास जाता है, इसके अंदर का डेटा कॉपी करता है, और जो ये वाली लाइन है ना हैश इंक्लूड फाइल एक्सटीडी जिसकी वजह से जा रहे थे, उसकी जगह ये डेटा कॉपी पेस्ट करता है। किसको किसको समझ आया थोड़ा थोड़ा? दिस इज सिंपल। यस, इंपोर्ट करता है डेटा को, करेक्ट कह सकते हो। आ गया? डाउट क्लियर हुआ? किसने पूछा था? डोंट रिमेम्बर। ओम, हाँ ओम, डाउट क्लियर हुआ है नहीं, या कुछ पूछना है इसमें? समझ आया? हैश इंक्लूड इतने अच्छे से नहीं बताता जल्दी कोई ना, अभी तक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसकी पहले। ओके, तो लाइव एग्जांपल एक बार शो किया है कि कैसे वर्क करता है बिना इसको किया। सर एच एल खोल में कैसे कन्वर्ट होता है क्या? रवि तुम अनम्यूट करो फिर पूछो। रवि, हाँ पूछो डाउट अनम्यूट करके। अरे ग्रीष्मा, थैंक यू थैंक यू। हम्म, पूछना है तो डाउट पूछो यार, ओपन करो माइक, ऐसे नहीं समझ आ रहा। सर एचएल खोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो वो कीड़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम? तो मतलब हैश इंक्लूड कैसे वर्क करता है, एक और एग्जांपल दूं? एवरीवन सी, ये माई एसटीडी ये वाला हटा दे रहा हूं, यहाँ पे ये आईओ स्ट्रीम कर दिया है। हर्षा अब नहीं कर पा रहा होगा सर्च, क्योंकि
इसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पहले तो फाइल से आ जा रही थी। अब एवरीवन सी, सर से मुझे लगा रवि अच्छा, अब देखो सी आउट, अब देखो ये वाला तो समझ आ गया हैश इंक्लूड कैसे काम करता है। एक हैश इंक्लूड का भाई होता है, वो भी प्री प्रोसेसिंग के टाइम यूज होता है। जैसे हैश इंक्लूड होता है ना, प्री प्रोसेसिंग स्टेज में दो वर्क होते हैं। एवरीवन ये अंडरस्टैंड कर लो, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, कभी भी कोई भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए देके ना। ओके, प्री प्रोसेसिंग में दो काम होते हैं, एक होता है फाइल इंक्लूजन, इंक्लूजन, एक होता है मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन सेम ही है एक्चुअली, मैं तो बोलता हूं दोनों है कॉपी पेस्ट। ओके, अभी देखना कितना इजी है। मैक्रो एक्सपेंशन, ये सब वर्ड इतने खतरनाक लग रहे हैं। अभी देखना, अभी बताओ फाइल इंक्लूजन मैंने बताया, इसमें किसी को डाउट है? जब हैश इंक्लूड लिखते हैं तो इसे बोलते हैं फाइल इंक्लूजन, क्योंकि हैश इंक्लूड के आगे फाइल नेम देते हैं तो फाइल का डेटा इंक्लूड हो जाता है। ओके, एक होता है मैक्रो एक्सपेंशन, इसमें यूज होता है, देखो हैश इंक्लूड, इसमें होता है हैश डिफाइन। ओके, देखो एवरीवन सी, एक होता है फाइल इंक्लूजन, एक होता है मैक्रो एक्सपेंशन। कहीं भी वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो जैसे, ठीक है, भूलना नहीं। ओके ओके, तो मैक्रो एक्सपेंशन बताता हूं। सी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम फाइल इंक्लूजन है, एक मैं यहां पे देखना मैक्रो बना रहा हूं, हैश डिफाइन। देखना हैश डिफाइन के आगे एक स्पेस लिखना, जैसे एम लिख दिया, एम में लिख दिया 1004। ओके, अब एवरीवन सी, इसके आगे लिखा है 1004, कोई सेमीकोलन नहीं चाहिए होता है। सो एवरीवन सी, अगर मैं कहीं भी ना अब एम लिखूंगा, एवरीवन सी आउट एम, so what will happen is, देखो m is not a many memory, try to understand, m के लिए कोई स्पेस एलोकेट नहीं हुआ है। m के लिए क्या है, एवरी टाइम जब प्री प्रोसेसिंग हो रही होगी ना, देखो m जैसे रीड करेगा, ओके m क्या है, देखो हैश डिफाइन m 1004, सो जहां जहां m होगा वहां वहां रिप्लेस हो जाएगा 1004 से। सो एक्चुअली ना, बिफोर इवन गोइंग टू कंपाइलेशन प्रोसेस, जहां जहां m लिखा होगा वो चेंज हो जाएगा 1004 में। किसको समझ आया? एग्जांपल दूं, देखो एक ये तो m एक बार प्रिंट करता हूं, एक बार यहां पे स्पेस देता हूं, एक बार लिखता हूं m इंटू 100, ये प्रिंट करता हूं। सो एवरीवन देखना व्हाट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड, m के लिए देखना कोई स्पेस एलोकेट नहीं हुआ है, बट देखना आंसर प्रिंट होगा। देखो c प्रिंट हुआ 1004, 1004, फिर 200 से मल्टीप्लीकेशन हुआ। इट इज व्हाट, इट इज अ मैक्रो। मैक्रो क्या है, m ना जहां जहां लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा 1004 से प्री प्रोसेसिंग स्टेज में। इसे क्या बोलते हैं, समझो, मैक्रो एक्सपेंशन। ये है मैक्रो, इसका एक्सपेंशन क्या होगा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में, एक्सपेंशन है, इसका मीनिंग है 1004, हर जगह 1004 से रिप्लेस हो जाएगा। ये 1004 से रिप्लेस हुआ, अब ये 1004 से रिप्लेस हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1004 इंटू 100, यही तो होगी। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? सो एक्चुअली में पता है क्या होगा, एवरीवन सी कितना इजी है। जैसे ये लाइन आएगी, देखो जैसे इसका प्री प्रोसेसिंग स्टेज में होगा हैश डिफाइन m 1004, यहां से 1004 होगा कॉपी, जहां जहां m होगा, अच्छा दिस इज m, m की जगह हो गया 1004। ओके, एक और m की जगह हो गया 1004। देखना दीज बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट। एवरीवन सी, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? कि मैक्रो एक्सपेंशन क्या है, फाइल इंक्लूजन क्या है, फाइल के अंदर का डेटा इसमें पेस्ट करने को फाइल इंक्लूजन। मैक्रो एक्सपेंशन क्या है, मैक्रो का जो भी नाम है उसकी जगह सिंपल जो उसके आगे लिखा है ना वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। ओके, एवरीवन गॉट इट और नॉट? चलो एक मुझे एक इसका आउटपुट बताना। ओके, इसका आउटपुट बताओ। ओके, इसका आउटपुट, रुको इसका आउटपुट एक मिनट चेंज करने दो, देखते हैं कितना दिमाग एक्टिव है।
What it after these two classes, I have more broader view to even simple codes. Yes, Aditya, that what I'm trying to make it more interesting so that you can understand basics of all this also. देखते हैं how many of you will got it. Tell me the answer. I don't think. थोड़ा लॉजिक लगाओ तो समझ आएगा. थोड़ा सा लॉजिक देखो, तो इंटरमीडिएट्स वाले भी गलती कर रहे हैं इसमें. अगर थोड़ा दिमाग लगाते ना तो समझ आता, पर नहीं लगा रहे हो दिमाग. चलो बताओ किस लोगों का ये आंसर आया है. इतना इजी क्वेश्चन है और मैंने एक का भी हाँ चलो एक का है. सत्यम, यस वेरी गुड सत्यम. सत्यम से एक्सपेक्टेशन था मुझे वैसे. हाँ और किसी का नहीं आया है सत्यम के अलावा. देखो वाई, कितना तो इजी था. समझो मैंने क्या बोला था, कॉपी पेस्ट. कॉपी पेस्ट क्या होगा एवरीवन सी, यहां से एम जहां जहां लिखा है उसकी जगह ये कॉपी पेस्ट करो. आगे वाली चीज लिखी है कॉपी, एवरीवन सी पेस्ट. पेस्ट कॉपी पेस्ट. अब एवरीवन जस्ट टेल मी इसका रिजल्ट क्या होगा. क्या होगा इसका रिजल्ट. अरे 1080 तो होगा 1008. एंड इसका रिजल्ट क्या होगा एवरीवन. बोर्ड मास तो पढ़ा होगा. राइट अच्छा बोर्ड मास तो पढ़ा होगा. प्लस से ज्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लीकेशन की. तो ये पहले कैलकुलेट होगा देन इट विल बी एडेड. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट नाउ. किसको किसको समझ आया कैसे होता है मैक्रो एक्सपेंशन. ओके एक लास्ट बार पूछता हूं, इसका आउटपुट बता देना. इसका आंसर बता दो एक बार मुझे, बस खुश हो जाऊं मैं थोड़ा. इस बार गलत हुआ तो क्लास अभी ओवर हो जाएगी. नो ग्रीष्मा, वाई वाई वाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. गुड सत्यम, गुड आदित्य, गुड लोकेश, गुड मिशेल, गुड पवन. अब देखो समझो कितना तो इजी था एवरीवन सी. रन करा, जो सत्यम इन लोगों ने भेजा है वही करेक्ट है. सिंपल क्या करना था, मैंने क्या बताया था कॉपी पेस्ट. ये इधर से कॉपी हुआ, ठीक है, इसकी जगह पेस्ट करो. ये इधर से कॉपी हुआ, एम की जगह पेस्ट करो. अब एवरीवन जस्ट टेल मी कौन कौन मुझे इसका आंसर नहीं बता पाएगा. ये तो बहुत ही इजी है 1006. ये देखो 4 - 2 × 100. अरे भैया बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन विल बी डन फर्स्ट. मल्टीप्लीकेशन हैज मोर प्रायोरिटी. यस और नो. ये हुआ 200. अब व्हाट हैपन 1008 - 200 व्हाट इट इज. How many of you got it? Now you got it or not? जब बोर्ड मास भी पढ़ाना पड़ेगा. इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं. हाँ चलो गुड. चलो ओके. सो व्हाट वी लर्नड, प्री प्रोसेसिंग स्टेज वी गॉट इट, वेरिएबल्स वी गॉट इट, डेटा टाइप समवॉट वी गॉट इट. ओके एक डेटा टाइप और बताता हूं एवरीवन सी. देखो हमने ये डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे. कैरेक्टर, एक डेटा टाइप और होता है. गिव मी 1 सेकेंड. एडिशन ऑफ 2 नंबर्स वाला प्रोग्राम आ चुका है. ओके यस दैट इज नोन एज स्ट्रिंग. जिसने बोला है सही बोला है. सी हियर मैं लिख देता हूं 6. दैट इज नोन एज स्ट्रिंग. String is not a primitive data type, but it is an important data type. String is what? Everyone, if you have seen, अगर मैं ध्यान दिया होगा, मैंने सारे कैरेक्टर only contain one.
Yes or no? One character. Like just tell me everyone, क्या is it a character? 0 0 या 1 0? Everyone tell me, is it a character? Obviously no. Character only contain one symbol. Symbol can be anything. 0 is a symbol, 1 is a symbol, A is a symbol, dollar is a symbol. तो वन सिंबल जो हो एंड सिंगल कोलंस के अंदर हो, सिंगल कोलंस, दैट इज नोन एज कैरेक्टर. कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा. स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स. ओके, लाइक ये इट इज नॉट अ कैरेक्टर, it is a string actually, but you can't write it in single colons because ये character नहीं है. Characters are written in single colons, so we said कि use double colons for string. This is a valid string. Like if you want to like just tell me if this is a character or a string. This is a string because it is a collection of characters and it has double quotes. Okay, अब just tell me this is a character or a string. Everyone tell me, this was a string, this is a character ना? Correct. सिंगल कोलन है. हाँ, वेरी गुड रवि, करेक्ट. पवन कैरेक्टर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? ये कैरेक्टर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब जस्ट टेल मी कि ये कैरेक्टर है या नहीं है. दिस इज अ कैरेक्टर और नॉट? गुड सिमरन, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कैरेक्टर. अरे मैंने अभी तो बताया, कैरेक्टर ओनली कंटेन्स वन. इट इज नाइदर कैरेक्टर नॉर स्ट्रिंग. इट इज इनवैलिड. इनवैलिड है ये, इनवैलिड, इनवैलिड. गुड, क्योंकि नाइदर कैरेक्टर. कैरेक्टर क्यों नहीं है? देखो सिंगल कोलन्स है बट मोर देन वन कैरेक्टर है. ओके, एंड दिस इज व्हाट? कैन एनीवन टेल मी? यस, दिस इज अ कैरेक्टर. गुड. सो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है? कंटेन मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड डबल कोट्स हो, तो इट इज अ स्ट्रिंग. ओके, एवरीवन जस्ट टेल मी, इट इज अ कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग? वेरी गुड उत्कर्ष, इट इज ऑब्वियसली अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. नो रुचित, बोथ नहीं है, ये डबल कोट्स में है. स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स में वन कैन आल्सो बी देयर. डबल कोट्स में है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रिंग. अगर ये सिंगल कोट्स में होता इट विल बी अ कैरेक्टर. सिंगल एलिमेंट के केस में ना, इट कैन बी कैरेक्टर एज वेल एज स्ट्रिंग बोथ. दैट डिपेंड्स ऑन कोलन्स. सिंगल कोलन है तो कैरेक्टर है, डबल कोलन है तो स्ट्रिंग है. दिस इज अ स्ट्रिंग. दिस इज इनवैलिड. मल्टीपल कैरेक्टर्स आर देयर बट सिंगल कोलन आर देयर. दैट इज इनवैलिड. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? देखो स्ट्रिंग के एग्जांपल लिख देता हूं इधर. स्ट्रिंग के एग्जांपल लिख देता हूं. सी, लाइक A is a string. ABCD is a string. Grishma is a string. Okay. Hash dollar is a string. Any collection of characters is a string. 101 is a string. 1.43 this is a string. डबल कोट्स के अंदर है. ओके, जस्ट टेल मी, ये स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है? देखो हमेशा याद रखो, एनीथिंग दैट इज इन डबल कोलन्स आर स्ट्रिंग. क्या याद रखोगे एवरीवन? एनीथिंग, एनीथिंग इन डबल कोट्स इज स्ट्रिंग. ओके, सिंगल कैरेक्टर, 1000 कैरेक्टर, डजंट मैटर. ओके, कैरेक्टर की डेफिनेशन, anything in single colons is a character if and only if only one symbol is there.
गॉट इट? यहां पे ओनली वन सिंबल कैन बी देयर, ओनली वन सिंबल, anything between single colons, and if it is only a one symbol, it is a character. Everyone got it? Symbol, character और string में difference. Okay, चलो, these are two data types. Everyone see now. थोड़ा सा एक और बार शो कर दूं. See here, just tell me what will be printed. यहां पे मैं लिख रहा हूं m की जगह what will be printed? Can anyone tell me what will be printed? कौन कौन बता देगा? अरे ऑब्वियस, सिंपल सा आंसर है सी, और नीचे हेलो वर्ल्ड. वाई? किसको दिक्कत आया है? बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट व्हाट, एम की जगह कॉपी पेस्ट करो. कॉपी पेस्ट व्हाट, जो भी एम के आगे लिखा है. ओके, पेस्ट हुआ. और इसके लिए तुम बता नहीं सकते क्या प्रिंट होगा? यस और नो? कौन कौन इसके लिए बता सकता है क्या प्रिंट होगा? सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. सिंपल. समझ आया? दैट्स इट, इतना ही है. So for today's class, this much only. Okay. From tomorrow's class, we will learn about conditional statements. Conditional statements. Okay. So homework भी देना है आज काफी, तो वो करके आना. Statements. सर सी कैसे प्रिंट हुआ? अरे रवि, तुम क्लास में नहीं थे क्या? ये तो रहा सी, ये पढ़ाया तो था. सी कैसे प्रिंट हुआ? सी ऐसे प्रिंट होता है. ए है 97, ए है 97, ये है 65 आस्काई वैल्यू, और ये है 67. कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 99, एंड 99 का कैरेक्टर इज सी. और नेक्स्ट लाइन में है सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये स्लैश एन करता है, नेक्स्ट लाइन में लाता है. सर ये डिफाइन तो हमेशा नहीं डालते हैं ना, कब यूज करते हैं? अरे ये डिफाइन हमेशा नहीं डालते, कभी कभी यूज करते हैं. जैसे कि मैं अपने टेम्पलेट दिखाऊं ना एवरीवन, चलो मैं अपनी टेम्पलेट दिखा देता हूं थोड़ा सा, उसमें दिखेगा. अभी स्क्रीन विजिबल है? ये मेरी टेम्पलेट दिख रही है? हाउ मेनी ऑफ यू? अच्छा विजिबल है ना CLS? तो देखो यहां पे मैंने ना मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब लार्ज नंबर्स होते हैं ना 10⁹ साइज के, तो हर बार अलग से ना इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग, इनमें कंफ्यूजन होने से अच्छा है हमेशा लॉन्ग यूज करो. तो देखो लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है कुछ, तो मैंने हमेशा डिफाइन कर दिया है. देखो जहां जहां इंट होगा वहां वहां रिप्लेस कर देना लॉन्ग लॉन्ग इंट से. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? कि अब देखो मैं कहीं भी जब ना डिफाइन करता हूं, जैसे इंट मेन लिखा हुआ है ना मैंने, इंट मेन, इसके अंदर लिखा है दो नंबर्स का एडिशन करना है, समझ लो INT A B और C in A B, और मैंने करना है C out A plus B. अब देखो ओवरफ्लो हो जाता है अगर ये बड़े नंबर है. अब समझो ये 10⁹ साइज का नंबर है. ओके, ये भी 10⁹ साइज का नंबर है. अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं, ये समझ लो ये 5 × 10⁹ है. समझ लो ये 5 × 10⁹ है, ये भी 5 × 10⁹ है. ये दोनों ऐड होंगे, कहने से इट विल बी 10⁻10 साइज नंबर. यस, बट ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा इंट की रेंज से. सो हमें ओवरफ्लो की कभी टेंशन ना लेनी पड़े ना. तो जहां जहां इंट, बट हर बार लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखोगे, डोंट यू थिंक ये लॉन्ग लगेगा? हर बार तुम लॉन्ग लॉन्ग इंट ऐसे लिख रहे हो, बहुत बार तुम्हें इंट लिखना होता है ऐसे ए बी, लॉन्ग 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 लिख दिया, यहाँ इंट होगा. ओके, तो इससे बढ़िया पता है क्या होता है, डायरेक्टली यहां पे मैंने डिफाइन कर रखा है, जहां जहां इंट होगा ना ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट इंट की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा. एवरीवन गेटिंग इट? तो ऐसे यूज कर लेते हैं हम.
अभी ज्यादा मत सोचो, ये बस एक सूडो टेम्पलेट है, इसके बारे में मत सोचना, ये मेरी टेम्पलेट बना रखी है। ये सब भी तुम्हें बताना होगा नंबर थ्योरी में, ये प्राइमैलिटी टेस्ट होता है। ये देखो इस प्राइम, ये रैबिन मिलर प्राइमैलिटी टेस्ट है। चलो ये सब बाद में पढ़ाएंगे, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। ओके, अभी ऊपर से जाएगा। हाँ, तो ये माई फाइल में डिलीट कर देता हूँ, ये समझ गए थे। ओके, अब नाउ जस्ट टेल मी, किसी को क्लास में डाउट ऐसे लिए करते हैं यूज? हाँ, अपने लिए नॉर्मली यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा खास यूज नहीं होता है मैक्रो एक्सपेंशन का। फाइल इंक्लूजन का कर सकते हैं यूज काफी, जब हमें कोड ना स्मॉल लिखना होता है तो कर लेते हैं। तो ये सब सीख जाऊंगा ना? अरे बिल्कुल सीख जाओगे रुचित, इजी होता है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है ये। इसीलिए तो हूं मैं। मैंने जो बोला है कि तुम बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो करते जाना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना होमवर्क दूंगा सही से करोगे ऑनेस्टी के साथ तो सब हो जाएगा। ग्रेट सेशन, लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स हर्षा। सर बट सर, हम एवरी टाइम लॉन्ग यूज नहीं कर सकते बिकॉज मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, एक होता है अभी जब तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बताऊंगा ना, पढ़ाऊंगा, तो एक असम्प्टोटिक चीज होती है। असम्प्टोटिक, ये अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करता है। अब देखो, अप्रोक्सीमेशन पे क्या वर्क करता है, कांस्टेंट फैक्टर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे समझ लो हमारी मेमोरी बहुत लार्ज होती है, तो कहीं 200 की जगह, अगर दो मतलब 100 की जगह 200, सही तुम्हारा 100 जीबी लग रहा था डेटा, इसकी जगह अगर 200 जीबी लग रहा है ना, तो भी ये असम्प्टोटिकली सेम है। कांस्टेंट फैक्टर हटा देते हैं। कांस्टेंट फैक्टर क्या है, 2 into 100 इसे चेंज कर लेंगे, एंड 2 कांस्टेंट होता है तो इसे हटा देंगे। ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं, ये असिम्प्टोटिकली मानते हैं। तो सोचो कि जहां तुमने सारी जगह इंट लिखा था, इंट ले रहा था 4 बाइट्स, ओके, एंड हर जगह तुमने लॉन्ग लॉन्ग इंट में चेंज कर दिया, वो लेता है 8 बाइट्स। अब एवरीवन सी, जहां पे 4 बाइट्स लग रहे थे वहां पे हर जगह 8 बाइट्स लग रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ अगर टोटल मेमोरी पहले कंज्यूम हो रही थी x, तो अब 2x कंज्यूम होगी। ये सर नो, ये इंट के लिए था, ये लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए है, लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो असिम्प्टोटिकली ना, ये 2 बहुत ही नेग्लिजिबल फैक्टर होता है कंप्यूटर्स में। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली ये मेमोरी इज इक्वलिटी इज दिस मेमोरी। अब जब मैं पढ़ाऊंगा असिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो समझ जाओगे। ओके, ऑर्डर इनका सेम रहेगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, सो दैट्स व्हाई। ओके सर, मैं पर्सनल रुचित सब पे ही पर्सनली ध्यान रख रहा हूँ, टेंशन ना लो। मैंने बोला था ना, बस जितना मैं बोलूंगा उतना करते जाना, प्लेसमेंट अच्छा होगा, गारंटी है। इसीलिए इतना टाइम लगा रहा हूं मैं। ओके, आज का होमवर्क मैं देता हूँ। ओके, और अच्छे से करके आना। ओके, इवन इट वाज ऑल बेसिक बट आई फाउंड इंटरेस्टिंग एंड समथिंग न्यू। यस उत्कर्ष, यही ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सी चीजें बेसिक है, बट बोर ना कुछ लर्न करते रहो नया। और इतना डेप्थ में नहीं पता होगा आईओ स्ट्रीम और ये सब, आईओ स्ट्रीम बोल रहा हूँ, इंक्लूड मैक्रो एक्सपेंशन, ये कैसे वर्क करते हैं। हाँ, आज का होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, सो एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम। वैप का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम। इसमें क्या ही बना पाऊंगा टू। अच्छा, नेम स्पेसिस वाला कल दे दिया था ना। राइट अ प्रोग्राम, देखो मैं बता देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम ये ऐसे नहीं याद होगा। इसमें क्या करना है ना, एक एक्सटर्नल फाइल बनाना, कोई भी माई फाइल, इसके अंदर कुछ कोड लिखना। ओके, कोड 1, एंड एक अपना सीपीपी फाइल बनाना, इसके अंदर लिखना कोड 2, और ऐसे करना, इसे इंक्लूड करना कोड 2 में और ये वर्क करे। ओके, इंक्लूड करना है कोड 2 में। ओके, ये x.cpp है, और इससे रन करो तो इसका कोड भी वर्क करे। गॉट इट एवरीवन? जैसे मेन पार्ट इसमें लिख दिया है, इसके अंदर सिर्फ इंक्लूड वो करना है। यस, समझ आ गया ना, हैश इंक्लूड वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड थिंग, मैक्रो एक्सपेंशन पे वर्क करना।
मैक्रो एक्सपेंशंस पे थोड़ा समझ लेना, थोड़ा एग्जांपल देखना गीक फॉर गीक से, ओके थोड़ा रीड कर लेना गीक्स फॉर गीक्स। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना टोटल काम, ओके। थर्ड, डेटा टाइप्स सारे यूज करके देखना, इनके सारे ऑपरेशंस, ओके। डेटा टाइप्स यूज यूज ऑल डेटा टाइप्स, यूज ऑल डेटा टाइप्स। कुछ स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स बनाना, यूज करना, ओके। यूज ऑल डेटा टाइप्स बाय आई मीन इज इंट यूज करना, इंट तो आज काफी यूज किया है, फ्लोट यूज करना, लॉन्ग यूज करना, डबल यूज करना, कैरेक्टर यूज करना, स्ट्रिंग यूज करना, कैसे इनके प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ओके। इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस ट्राई करना, प्लस प्लस ऑपरेशन किस किस पे वर्क करते हैं, ओके। ये 3 चीजें ये ट्राई करके आना है। अभी इजी होमवर्क है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ट्राई करना है खुद से। जब तक टाइप नहीं करोगे, ये जब खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। चलो अच्छी बात है फिर तो मिशेल, अगर कुछ नया लर्न करने को मिल रहा है। अभी बेसिक्स ही है, पर मैंने तुम्हें बोला था ना बेसिक्स में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई। क्योंकि कंटेंट बहुत ही डेप्थ में है, इसलिए अच्छे से अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके दिक्कत होगी, क्योंकि लेवल बढ़ता जाएगा, ओके। Yes. So if anyone wants to ask anything, they could ask. Otherwise, you can leave. और yes, definitely. Hmm. Okay, Kiran. Okay, Aditya.